the classification of systems. Okay? In classification of system, firstly we have to describe what is system. So what is system? System is a meaningful interconnection of physical devices and components. Okay? That is system. And system is a combination of subsystems. Is it clear? Now we have to start. The system are classified into their characteristics. Okay? The system are classified according to their characteristics. Okay? So first one is what? First is continuous time and discrete time systems. Second one is lambda parameter and distributed parameter. Third one is static and dynamic systems. Fourth one is causal and non-causal systems. Fifth one is linear and non-linear systems. Sixth one is time invariant and time variant systems. And last one is stable and unstable systems. So in that particular topic, we will study one by one of each and every classification. So firstly, first classification is what? Continuous and discrete time. That classification you all are very well, you all know very well. And what is continuous time and what is discrete time? So in continuous time, just a minute. Okay. So in continuous time, a continuous time system is one in which operates on a continuous time signal and produces a continuous time output signal. That is called continuous time systems. Okay. So see that diagram. There is one block or box. In that system is what? That system is continuous time system, and we have to give that system an input. That input is xt because we have to use the continuous time. That's why here the notation is what? Here the notation is xt. That is input signal, and the output signal is what? That notation is what? Yt. Or we have to represent the output with yt. So if the input and output of CT system are xt and yt, then we can tell that xt is transformed to yt. Then xt is transformed to yt. So we have to written in simple formula. That formula is what? Mathematical expression is what? That mathematical expression is yt equal to txt. Yt equal to txt. Okay? That is its representation. Okay? And continuous time examples is what? Examples are amplifiers, filters, and motors. Amplifiers, filters, and motors. Okay? That is examples of continuous time systems. Okay? So another one is what? Discrete time systems. So a discrete time system is one which operates on discrete time signal and produces a discrete time output signal. Okay? But its examples are not amplifier, filters, and motors. Its examples are optical encoder that depends on digital inputs or that depends on digital values or discrete values.
Okay, that is known as discrete time system. There is also one block. That block is represent discrete time systems, and we have to give that system as input xn and output, and produces an output yn. So its notation is what? Xn and yn, because it's a discrete time system. All of you clear that? And if the input and output of discrete time system are xn and yn, then we can transform x into y. So its mathematical expression is what? Its mathematical expression is yn equals to txn. ठीक है, yn equals to txn. That is the mathematical expression for discrete time systems. Okay. Now, second one is, what is our second classification? Our second classification is lumped parameter or distributed parameter. Okay. So in lumped parameter, lumped is what? Lumped Hindi meaning is इकट्ठा, ना? मतलब if any system or any parameters are working together, so that system is called as lumped parameter system. ठीक है? So its example is ordinary differential equation, because in ordinary differential equation we have to perform a function with a combined form, ना? Hello. Due to some network issue, connection are disconnected. So we have to start with lumped parameter, है ना? So, my voice is clear? Yes, ma'am. Okay. So in lumped parameter, for example, lumped parameter is an ordinary differential equation, because in ordinary differential equation we have to solve the function or equation in combined form, and its example is also a transmission line. But in transmission line, before transmission is distributed, and another form, it's a lumped. Okay, so lumped parameter means what? ऐसा कोई भी फंक्शन, जो फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा हो, कंबाइंडली परफॉर्म. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल जैसे आरएलसी सर्किट है, ऐसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस तीनों एक ही सर्किट में कंबाइंडली वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा लम्प्ड पैरामीटर सिस्टम हो जाएगा. ठीक है. और अगर ही यही आरएलसी जो क्या हो, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म परफॉर्म कर रहे हो, सिंगल परफॉर्म कर रहे हो, तो वो क्या जाते हैं? हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स हो जाते हैं. ठीक है. जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इक्वेशन होती है, उसको स्प्लिट करते हैं, फिर पार्शियल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के बाद फिर उसे कंबाइन करते हैं, है ना? तो वो क्या होगी? हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में. ये चीज़ आई सबको समझ में? लम्प्ड पैरामीटर का मतलब सिर्फ इतना होता है, ऐसे फंक्शन या ऐसे सिस्टम्स जो एक साथ वर्क कर रहे हो, है ना, इकट्ठा होकर वर्क कर रहे हो, वो क्या होते हैं? हमारे लम्प्ड पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है. और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब तो डिस्ट्रीब्यूशन से समझ में आ रहा है. तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल और है ट्रांसमिशन लाइन. ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? पहले तो उसके सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं? एक जगह आके क्या होते हैं? लम्प्ड होते हैं. उसके बाद वो क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है. ठीक है. उसको कैसे समझ सकते हैं? देखो, उसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज दैट वी हैव अ मोबाइल फोन, है ना. अब हमारे पास अगर कोई सिग्नल आ रहा है, तो पहले वो कहाँ जाता है? पहले वो सिग्नल कहाँ जाता है? टावर पे जाता है.
है ना। टावर के बाद क्या होता है, जब उस टावर उसको जब टावर उसको एनालाइज करता है कि हाँ ये सिग्नल किसका है, ये सिग्नल जियो का है या वॉटएवर किसी का भी है, तब जाके वो उसे क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिंगल टाइम में अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन से बात कर रहे हो तो कोई दूसरा नहीं कर रहा होगा, सेम ऑपरेटर कर रहा होगा ना। तो इसलिए क्या होता है, पहले वो क्या होते हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में कहाँ आते हैं, एक पर्टिकुलर टावर पे आते हैं। उसके बाद वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उसके बाद वो क्या होते हैं, अलग अलग जगह से डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में एक पर्टिकुलर जगह पे आए, लम्ड हुए, उसके बाद वो क्या हुआ, फिर से डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, next is static and dynamic system. So in simple form, a system is called static or memoryless if its output at any instant depends on the input at that instant. आई बात समझ में। स्टैटिक का मतलब ये होता है, स्टैटिक मतलब मेमोरीलेस, मेमोरीलेस हो गया इसका मतलब ये हो गया वो ऑलवेज इस पर डिपेंड करेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना। प्रेजेंट वैल्यू पे कैसे, सपोज दैट वी हैव अ इनपुट वन, सो स्टैटिक मीन्स इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनपुट वन। ठीक है, तो आउटपुट हमेशा उस वन इनपुट पे डिपेंड करेगा। ठीक, मतलब वो इनपुट 1 2 3 4 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, बट एट पर्टिकुलर टाइम वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा, है ना। मतलब उसको स्टोर करके नहीं रखता। मेमोरी लेस का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जहाँ जिसकी कोई मेमोरी नहीं हो, मतलब मेमोरी नहीं है इसका मतलब हम किसी भी चीज़ को वहाँ पे स्टोर कर ही नहीं सकते। जब स्टोर नहीं कर सकते इसका मतलब वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, बट प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करेगा। क्योंकि ना तो उसके पास कोई पास्ट वैल्यू है, ना तो उसके पास कोई फ्यूचर वैल्यू है। आ रही बात समझ में, है ना। तो वो क्या होता है हमारा, इज कॉल्ड स्टैटिक और मेमोरी लेस सिस्टम। ठीक है, और अदरवाइज द सिस्टम सेट टू बी डायनेमिक और विथ मेमोरी। ठीक है, तो जो डायनेमिक सिस्टम्स होते हैं, डायनेमिक सिस्टम्स डायनेमिक सिस्टम्स में क्या होती है, मेमोरी होती है। इसलिए उन सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, वो पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि उनके पास मेमोरी है तो वो स्टोर भी करके रख सकते हैं। एक बार जो आउटपुट आया उस आउटपुट को भी वापस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक, सो फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल्स लिख रही हूँ आपको। स्टैटिक का एग्जांपल क्या है, स्टैटिक का एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर या एक्स टू टी। वैसे एक्स टू टी नहीं हो, एक्स स्क्वायर टी है। तो वाई टी इक्वल टू फाई टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी इज अ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम। अगर इसी को हम डिस्क्रीट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाई एन इक्वल टू एन एक्स एन डिस्क्रीट टाइम। तो जैसे जैसे हम एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि ये दैट सिस्टम इज स्टैटिक और डायनामिक। ओके, सो वाई टी इक्वल टू डी एक्स टी बाई डी टी in continuous time and yn equals to and yn equal to x n minus 1 in discrete time। ठीक है, n minus 1 का मतलब क्या हो गया, देखो n minus 1 का मतलब ये हो गया, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ इन दैट पर्टिकुलर टाइम, y n इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो ये क्या है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन जब y n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो रही है, वहाँ पे 0 हो जा रही है। मतलब वो कहाँ पहुँच जा रही है, पास्ट में पहुँच जा रही है। आई वो समझ में, कहाँ पहुँच जा रही है, पास्ट में पहुँच जा रही है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डायनेमिक सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स,